सक्सेस नॉट टू मेक मनी। लीडरशिप क्या है आपकी नज़र में? जो आजकल की एजुकेशन पाकिस्तान में, वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर लेने की तालीमी रसीद है। इतने साल आपने काम किया, कोई रिग्रेट है? लीडरशिप हेल्प टू अदर्स। A message of hope and optimism for the youth of Pakistan. जब आप खुद से काम करते हैं ना, तो अपने डिसीजन नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो उससे सीखता है बंदा, तो उससे फिर आगे फॉरवर्ड होता है। Assalamu alaikum everyone, my name is Shifa Ijaz from CEO Club Pakistan. I'm back again with another episode of Coffee with CEO, and today we have a dynamic personality who wears many hats. We have Mr. Kareem Aziz Malik, who is the CEO of Barkat Rice Mills, and also he is the chairman of FPCCI. Assalamu alaikum sir. वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? हेलो, शुक्र। Sir, can you please tell us a bit about your educational and professional journey so far? Yeah, this journey started from 70s. And then at that time I was a student, but I worked with my father in trading Okay. in 70s, and on 76 I completed my matric and came to college and still working with my father. In 80s I joined my father business that was in flour mills from Tando Adam, and after that in Miachono is a ginning mill. Then I started my career professional in 1981 Wow. in steel sector. That was the Kareem Aziz Industry Private Limited in Mashallah, Hassanabad. mashallah. Then after 8 years, I make a new factory in steel sector, that is Fazal Steel Private Limited. Okay, mashallah. As a director working there, but director sales working there. In short, in 2022, I joined myself Barkat Rice Private Limited. I am the CEO at that company. My wife is Director of Finance and Director Admin, and my son is Director over International Marketing. सारी फैमिली एक साथ। Family, this is very family business. बहुत प्यारी बात है सर ये। And no, my grandsons is also working with me for a short time because he is in completely O level, अच्छा and अच्छा। he's then after A level and he'll go abroad for higher Full family education. legacy is working under one company. That is wonderful. That is wonderful, sir. So I really appreciated my work. In my other field, I was in 2010 I was elected as a senior vice president in Islamabad Chamber of Commerce and Industry. Then I elected 3 years consecutively chairman Pakistan Steel Rolling Mill Association, alternate year. Then I focus on my own business few years, and in last 2 years my president, my friend, he became the president of PCCI, Sheikh Atraf Ikram. Mashallah. He requested me to come again in federation as a chairman because you already perform in this seat. So last 1.5 year I'm working on as a chairman. I'm giving my prime time to the business community. This is my passion. I like this to work with the people, for the peoples. So I joined with the federation. सर इतने काम आप कर रहे हैं, आपने इतने लीडरशिप रोल्स में आप काम किया, इतने सालों से काम किया, लीडरशिप क्या है आपकी नज़र में? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। लीडरशिप हेल्प टू अदर्स, सिंपल वर्ड। सिंपल। सर लोग जो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, आप उनको एम्प्लॉय करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, उनमें कोई आपको लग रहा है कि एकेडमिया में और बिजनेस में कोई गैप है? अगर वो गैप है तो हाउ डू यू थिंक वी कैन फुलफिल दैट? देखें, जो आजकल की एजुकेशन पाकिस्तान में, वो सिर्फ
एक पीस ऑफ पेपर लेने की तालीमी रसीद तलीम है, वो है। जबकि हमें जब अपने स्टूडेंट को इंटर्नशिप करानी चाहिए कॉलेज की टाइम पे, 2 महीने की, 3 महीने की, जो लोगों जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं इस वक्त, तो उसी प्रोफेशन में ट्रेडिंग भी ले जाएं, इंडस्ट्री ले जाएं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, राइस है, जिस तरह मेरा राइस है, टेक्सटाइल है और स्टील है, उसमें बच्चों को कम से कम 2-3 महीने का इंटर्नशिप देना चाहिए, देन उनको पास आउट करना चाहिए, ताकि वो जो पास आउट करेंगे ना, जो अपनी डिग्री हासिल करेंगे ना, तो उसके जो जेन में कॉन्सेप्ट है ना, थ्योरी के अलावा, थ्योरी सब पढ़ते हैं, पास भी हो जाते हैं, कोई रटल कर जाता है, कोई वैसे कर लेता है, तो वो उसको पता होगा कि मेरा प्रोफेशन ये है, तो मैंने इसके ऊपर काम किया है। तो पाकिस्तान में तलीम जो है ना, आप बाहर भेजे ना, तो एज ए प्रोफेशनल वो काम कराते हैं, बैंक सेक्टर में ले जाएंगे, कंपल्सरी है। तो लेकिन इधर मैं चाहता हूँ कि हमें जो अपना एकेडमी है उसको देखना चाहिए कि हमने बच्चों को किधर लेके जाना है, किस प्रोफेशन में आगे उन्होंने जाना है, क्या इसको माइंड क्या है, उसके एंटर करें उसको, तो फिर उसको आप डिग्री दें। मैं ये समझता हूँ। सर, आपके लिए सक्सेस क्या है? सक्सेस नॉट टू मेक मनी, नॉट टू मेक मनी, success to transfer your knowledge to your younger. This is my success. बहुत बड़ा। सर, इतने साल आपने काम किया, कोई रिग्रेट है कि काश कुछ अलग कर लेता मैं किसी चीज के बारे में? ये बड़ा पर्सनल सवाल है। सॉरी, अगर आपको दिल है तो बता सकते हो, वरना कोई बात नहीं। देखिए, इंसान खुद काम करे ना, तो खुद डिसीजन लेता है, ठीक है ना। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप पार्टीशन में चली जाती हैं ना, तो आपकी कुछ एबिलिटीज़ ना वो अंदर आ जाती हैं, क्योंकि कुछ डोमिनेट हो जाता है, पर्सन डोमिनेट कर जाता है। जब आप खुद से काम करते हैं ना, तो अपने डिसीजन नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो उससे सीखता है बंदा, तो उससे फिर आगे फॉरवर्ड होता है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को अदारे में काम करना अच्छी बात है, सीखना चाहिए, लेकिन जब प्रोफेशनल आता है ना, वो मैं कहता हूँ उसको पर्सनली उसके ऊपर डोमिनेट होल्ड होना चाहिए उसका, फिर वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करेगा, दिन 24 घंटे काम करेगा। ऐसा ही है सर। सर, लास्टली अ मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। यूथ ऑफ पाकिस्तान ये है कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, ये सब कहते हैं, लेकिन है डेफिनेटली। हमें अपनी यूथ को इधर रिटेन करना चाहिए पाकिस्तान में, और लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, ठीक है। आपको हर चीज़ मिलेगी, जो भी एक ख्वाहिश है ना आपको मिलेगी, लेकिन हार्ड वर्क, उसमें आप काम करें, मेहनत से करें और लगन से करें। ये नहीं करना चाहिए किसी को भी कि जिस प्रोफेशनल में है उसी मेरे दूसरे को दे के वो प्रोफेशन मेरा अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ, और करना चाहिए, और जिसमें आप समझते हो कि मैं इसमें मेरा होल्ड है, उसमें काम करो। वो गलत भी करेगा ना, अच्छा है, लेकिन अपने पेरेंट्स, अपने एल्डर के अंडर काम करेगा। तो मैं आखिर में 2 लफ्ज़ ये बोलूँगा कि जो बंदा अपने एल्डर की इज्जत करता है, वो हर चीज़ दुनिया में लेता है, वो हासिल करेगा। अदरवाइज ओवर स्मार्ट बनने से कुछ नहीं होगा। दैट्स ऑल। Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. It was wonderful and very inspiring.